let's start. So, hello everyone. Hello, my lovely friends. So, welcome to this lecture, which is specifically for CSEET students. And my name is Chandni Arora, and you all know me. Some of you know me, some of you don't. So, I'm a company secretary by profession. I'm teaching business environment, ethics, law with super profs from last 3 to 4 years, and I'm specifically dealing with CS Foundation students. So today's lecture is very special, and it is the something which we talk about the ICSI announcement जो 5th August 2020 को आई, and after that some of the students are like in a situation where they are like panic situation and some of them are happy. तो आज हम सबसे डील करेंगे कि how to deal with the situation where you are like thinking कि क्या हम इस एग्जाम को दें या ना दें, and some of the students who want to know कि कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जाए. Since you all know that this particular exam is going to, the first CSEET exam is going to be held on 29th of August 2020, which is hardly 20 days from this date. So only 20 days and your exam is near. So what to do, first question is what to do. अब यहाँ पे सारे जो जिसने नोटिफिकेशन देखी, जिसने अनाउंसमेंट देखी, दे आर लाइक कि हमें पेपर देना ही नहीं चाहिए, 20 दिन में तो पढ़ाई होगी नहीं. सबसे पहले whoever is watching this lecture, प्लीज होता है ना कि इस थॉट को दिमाग से एकदम गायब कर दो, फुर कर दो, बिकॉज आज हम इस लेक्चर में कहीं पे भी नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं बात करने वाले. वी आर गोइंग टू बी पॉजिटिव, वी आर गोइंग टू बी positive in the sense that we can do it, because it's not like होता ना, it's not a science which is going to be there. आपको बहुत ही easy तरीके से एग्जाम आपको क्लियर हो सकता है if you are literally wanting कि हाँ मैं इस पेपर निकालना चाहता हूँ. तो first thing first, don't panic at all because अभी 20 दिन है. Take it as a like, जब हम ग्लास की बात करते हैं, it is half full or half empty. We are going to take it as half full. तो let's get into this particular lecture. तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि इन पर्टिकुलर 20 डेज में कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जाए दैट वी कैन गेट अ रैंक. मैं ये नहीं बात करी पास होना, पास आई एम 100% श्योर कि अगर आप एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम यूटिलाइज करोगे ऑन योर स्टडीज in next 20 days, you can definitely pass your exams. But here I'm not going to tell you the tips and tricks कि आप इसको सिर्फ पास करो. I want कि आपके पास एक अच्छा मौका है that you can gain a rank in this particular examination. Why I am planning of this rank? Because since this examination is being conducted in a very short period of time, तो कुछ बच्चे जो ये लेक्चर नहीं देख रहे हैं, of course they'll make up their mind कि हम ये एग्जामिनेशन हम ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन करेंगे और हम लोग नवंबर वाला देंगे. माइट बी अभी भी आप यही सोच रहे होगे, बट आई ट्राई कि आई मेक योर माइंड कि आप ये एग्जामिनेशन दो, बिकॉज ये बहुत अच्छा चांस है. व्हाई इट्स अ चांस? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट गोइंग टू बी अटेम्प्टिंग दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमें तो 20 दिन आराम करना है, हम ये 20 दिन छुट्टी मनाएंगे, हम तो नवंबर वाले में देंगे. बट याद रखना, अगर आप जितना भी प्रोक्रास्टिनेशन में बिलीव करोगे, नवंबर का एग्जाम मार्च में चला जाएगा, मार्च का एग्जाम आगे चला जाएगा, बट आप पढ़ोगे नहीं. ठीक है, तो इसके साथ आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं. हम लोग छोटी छोटी, पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पूरी एक्सप्लेन करूंगी, अनाउंसमेंट पूरी एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले देख लेते हैं कि दिस पर्टिकुलर एग्जाम CSEET एग्जाम फर्स्ट is going to be not going to be conducted in a centers, test centers. It is going to be conducted through a remote practice mode. What is a remote practice mode? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि ये क्या है. तो here it is not a exam जहाँ पे आपको सुपरविजन नहीं किया जाएगा. It is a examination which is going to be held. आप अपने सिस्टम, आपने अपने लैपटॉप के थ्रू इस एग्जाम को दोगे. पर मतलब ये नहीं सोचो कि अब तो मतलब enjoy वाली बात हो गई, that if this examination is conducted from your homes, you can do anything. Star mark, you cannot do anything. And this is seriously a warning for all of you who are planning कि आप कुछ होता ना, कुछ शरारत करोगे, तो आप शरारत नहीं कर सकते. Proctored mode is a mode जहाँ पे there will be a proctor and he is going to supervise you. He is going to see you. He is going to see if you are opening any tab, if you are trying to connect with someone, because your camera will be constantly
open, like my camera is still open. तो जैसे मेरा कैमरा ओपन है और मैं सामने देख रही हूँ, if I just blink my eye ear, तो आपको पता चल रहा है कि मैंने इधर देखा है ना. तो similarly your examination will be supervised by a person who is going to see you. तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो बच्चे ये सोचने आए हैं कि अरे देख लेते हैं लेक्चर बट हमें तो चीटिंग करने का मौका मिलेगा, चांस ही नहीं है, भूल जाओ. ठीक है. Next good thing that the Viva has been removed. You know there are 4 subjects in your CSEET. One is business communication, legal aptitude, then there is business environment, and last is current affairs along with presentation skills. अभी तक क्या था कि जो presentation skills का part था and the communication skills, it was decided कि हम उसको through Viva लेंगे. ठीक है. पर अभी ये ऑप्शन है नहीं बिकॉज आप एग्जामिनेशन योर फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ होम आप अभी एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो ये वाइवा हटा दिया गया है. सो देयर आर मोर चांसेस टू गेन अ रैंक. तो पॉइंट नंबर 1, वाइवा हैज बीन रिमूव्ड, मोर चांसेस. पॉइंट नंबर 2, यू आर गोइंग टू बी गिविंग एग्जाम जो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू इग्नोर. तो यहाँ पे आपके चांसेस रैंक के और ज्यादा बढ़ते हैं. थर्ड थिंग, दिस इज अ फर्स्ट CSEET एग्जाम. अभी तक CSEET का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं है, एंड दैट टू इन द सिचुएशन लाइक दिस. अगर ये एग्जाम हो रहा है तो आई एम 100% श्योर दे विल अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट्स और थोड़ा सा एग्जाम रिलैक्स्ड होगा. इट विल नॉट बी अ एग्जाम जो क्रैक करना मुश्किल हो, तो इट विल बी अ इजी एग्जाम. तो थर्ड, ये एक पॉइंट हो गया. अब बात करते हैं कि मैडम आप इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, व्हाई यू आर गिविंग सच मोटिवेशन. Question arises, सिर्फ 20 दिन बचे हैं मैम, एग्जाम इज ऑन 29th, वी आर स्टैंडिंग ऑन 8th. कैसे होगा, कैसे होगा. तो सबसे पहले एक छोटा सा हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन भी, बट लेट्स डिस्कस कि कैसे पढ़ना है, कैसे आपको एक अपना रूटीन बनाना है. तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि 20 डेज में से 5 दिन या 4 दिन, चलो 4 दिन आप हटा दो, भूल जाओ कि ये 4 दिन भी हैं. तो लास्ट के जो 4 days हैं, you have to remove from your routine. तो 4 days are for revision and specifically for revision. आप उसमें कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ रिवाइज करोगे. अब कितने बचते हैं, only 16 days are left. ठीक है. 16 दिन, 4 सब्जेक्ट, CSEET, we have to get the rank. This is the point. अब इसके बारे में बात करते हैं. अगर हम देखें, we have 16 days to crack our exam of CSEET. 4 तो मैं भूल गई ना, भूल गई मैं 4. अब 16 दिन में हमारे पास 4 पेपर हैं, तो कितने हुए हमारे एक सब्जेक्ट के लिए 4 days. लगभग आपके पास 4 days हैं टू प्लान योर सब्जेक्ट, है ना. तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई कैसे की जाए. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दो स्टूडेंट्स जो भाई अभी तक खाली बैठे थे. दे वर ट्राइंग कि हाँ एग्जाम तो होना नहीं है बिकॉज कोरोना वायरस है, वी आर गोइंग टू बी फ्री टिल 2020 एंड. और अब अचानक उन्हें पता चला है कि अब तो मतलब हो गया ना कि हमारे सर पे बिजली गिर गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता. तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले बात करना चाहूंगी बिकॉज दे आर मोर इन फेयर, दे आर मोर इन अ सिचुएशन ऑफ पैनिक कि हम तो मतलब अब अचानक एग्जाम सर पे आ गया. तो सबसे पहले एक बात मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ उन लोगों के मन से कि 20 दिन में अगर हम शुरू करें तो नहीं हो सकता. अगर आपने, मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी तक किताब को हाथ भी नहीं लगाया हो, बिल्कुल कोई लेक्चर ना देखा हो, सारे लेक्चर पढ़े हैं बट यू आर नॉट वॉचिंग इट, यू आर नॉट सॉल्विंग एनी MCQ, यू डोंट नो एनीथिंग, बट स्टिल यू कैन डू इट बिकॉज CSEET, the syllabus of CSEET is very simple. If you have done something in your 12th ना, तो you can also crack it. ठीक है. तो वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता, उनके लिए भी हो सकता है. 4 दिन पर सब्जेक्ट कैसे करना है ये बात करते हैं, और एग्जाम सब्जेक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं पहले. तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. आपने बिजनेस कम्युनिकेशन अपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, एंड यहाँ पे कोई 30 मार्क वाली बात भी नहीं है. इट इज नॉट टेक्निकल एट ऑल, इट इज अ वेरी बेसिक सब्जेक्ट, इट इज रिलेटिंग टू योर बिजनेस. तो बिजनेस कम्युनिकेशन मैं इजी वाले में मार्क करके चलती हूँ. हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, हम लोग इसे मार्किंग करेंगे इजी, थोड़ा सा डिफिकल्ट, मॉडरेट. ठीक है. तो बिजनेस कम्युनिकेशन मेरे अकॉर्डिंग इट इज अ इजी सब्जेक्ट. ठीक है. द सेकंड सब्जेक्ट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, अकॉर्डिंग टू मी दिस सब्जेक्ट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी बिकॉज एक तो लीगल एप्टीट्यूड 12th में आपने आज तक नहीं पढ़ा है. ठीक है. यू आर रीडिंग इट हियर ओनली. लॉजिकल रीजनिंग इज ऑब्वियसली एवरी टाइम टफ. ठीक है. टफर देन अ बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट.
तो लीगल एप्टीट्यूड को मैं डिफिकल्ट पोर्शन में रखना चाहती हूँ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आपने 12th में पढ़ा है तो इट इज इजी फॉर यू एंड इट इज मोर ऑफ अ रट्टाफिकेशन वाला थिंग है, यू कैन क्लियर इट अगर आप इसे याद कर सकते हो। देन कम्स द करंट अफेयर्स विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड most difficult portion. Why it is most difficult portion? It is difficult for me also. इसका रीजन ये है कि करंट अफेयर्स हमारे अभी तक कभी स्ट्रांग होते नहीं है, हम कभी इस पे फोकस करते नहीं है, है ना। तो करंट अफेयर्स ना मैं आपको बोलूंगी कि इसको एक इम्पॉर्टेंट उसमें लेके चलो, क्योंकि 15 नंबर के तो यही आने हैं। तो करंट अफेयर्स का मैं बताऊंगी कैसे करना है। देन कम्स द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल विच इज नथिंग। तो आपके पास अब आपको पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट है टफ और कौन से सब्जेक्ट है इजी। अब 4 दिन कैसे पढ़ाई करनी है, देखो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लगातार 4 दिन तक पढ़ोगे, फिर आप एक सब्जेक्ट को शुरू करोगे, फिर लगातार 4 दिन तक पढ़ोगे, जब आप वो फर्स्ट 4 पढ़ रहे होगे ना, तो यू गेट अ कॉन्स्टेंट फियर कि मैं ये खत्म नहीं कर पाऊंगा और वो 4 कब करूंगा, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जो 4 दिन का बना रहे हो ना, टेक इट एज 8 days एंड स्टडी 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को देखना शुरू करोगे, आप नहीं, आपका दिमाग हमेशा इट्स अ माइंड जो हमेशा ऐसे चलता है, यू ट्राई कि यार अभी मैं बिजनेस कॉम पढ़ रहा हूँ, चलो लीगल रीजनिंग तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा लीगल रीजनिंग में। हमें सारों को बैलेंस करना है। तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन हम एक ईजी लेंगे, एक टफ लेंगे, एक ईजी लेंगे, एक टफ लेंगे। वाई? बिकॉज ईजी करते हुए ना आप ईजी चले जाओगे, टफ का टाइम ही नहीं आ पाएगा। तो हमें एक टफ पोर्शन उठाना है, एक ईजी पोर्शन उठाना है, एक टेक्निकल उठाना है, एक बेसिक उठाना है, ठीक है। अब इट कैन डिपेंड अपॉन इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर माइंडसेट कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड से शुरू करो। रीजन बीइंग, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिकॉज लीगल एप्टीट्यूड इज समथिंग वेरी विच इज वेरी डिफरेंट एंड विच इज वेरी न्यू फॉर यू, और वो डिफिकल्ट भी है। साथ में इजी सब्जेक्ट उठा लो, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ सकते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ 5 दिन लगातार ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स ना उसको अलग से मत लो, करंट अफेयर्स आप रोज पढ़ो, ठीक है। एटलीस्ट 1 hour फॉर अ करंट अफेयर्स डेली। 1 भी मैं कम कह रही हूँ, आपको करंट अफेयर्स ज्यादा देखने पड़ेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ह्यूज हैं और 15 मार्क्स से आपको मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पे देने हैं। तो करंट अफेयर्स रोज पढ़ने हैं। यहाँ तक तो आपको ये समझ आ गया कि कैसे हम लोग इसको मर्ज करें, कैसे हम लोग एक होता है ना कि सेट बनाएं कि किसका सब्जेक्ट कौन से के साथ चलेगा। इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू, आपकी कहाँ तक पढ़ाई है। अगर आपकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं है तो मैं सोचूंगी कि आप लीगल एप्टीट्यूड और बिजनेस कम्युनिकेशन को साथ में पढ़ लो, बिकॉज लीगल एप्टीट्यूड में आपको इंटरेस्ट आएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आएगा। बीच बीच में करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, ठीक है। और एक बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस प्रेजेंटेशन अलग पढ़ दो, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन कि मैम दिन में 1-2 घंटे पढ़े तो चलेगा? नो, क्योंकि अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब मैं अगर आपको ये गाइड करूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लो तो चल जाएगा, तो मैं आपका एक सही गाइड नहीं बन पाऊंगी। आई विल नॉट बी अ गुड टीचर टू यू। अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, 4 दिन बोल रहे हैं ना, तो 4 दिन मतलब 24 आवर्स के हिसाब से आपकी स्लीपिंग टाइम हटा के सारा ही आपको देना पड़ेगा, बिकॉज अब टाइम तो है नहीं 4 दिन पर सब्जेक्ट। बट इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही 24 घंटे पढ़ोगे। एटलीस्ट 8 hours अगर आप पढ़ रहे हो दिन में, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक CSWT विद फ्लाइंग कलर्स, यू नो, विद रैंक। तो अगर आप 8 दिन अपने, समझ लो ये 24, अभी ये 29th तक अब सारे काम भूल जाओ, जस्ट फोकस कि यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। आई नो डिफिकल्ट है, आपके फ्रेंड्स आपको मैसेज करते रहते हैं, उन सबकी छुट्टी है, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, यू आर वॉचिंग योर सीरीज, यू आर वॉचिंग टेलीविजन, यू हैव फ्रेंड्स, बट दे कैन वेट, दे कैन वेट। बट दिस एग्जामिनेशन एक बार गया तो अब नवंबर में आएगा। मैं ये नहीं कहती कि नवंबर में आएगा तो आप कर नहीं सकते, ये जो पीरियड है ना अगस्त से नवंबर का, ये आप बचा सकते हो। और आपको मैं विश्वास करना, CS एग्जामिनेशन में एक एक महीना भी बचाना, एक एक अटेम्प्ट बचाना आपके करियर को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप 6 महीने में, हो सकता है आपका फ्रेंड आपका सीनियर बन जाए, ठीक है। तो इस बात के साथ आपको ये करना है। तो 8 घंटे एटलीस्ट आपको इसमें यूटिलाइज करने ही करने हैं, ठीक है। 8 घंटे कर लो, ब्रेक में पढ़ लो, मेक योर टाइम टेबल। अब यहाँ टाइम टेबल की बात आती है तो मैं बोलती हूँ कि टाइम टेबल मैं बना के दूँ,
बट मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि आपका टाइम टेबल कैसे हो अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। ट्राई कि आप एटलीस्ट 2 आवर्स एक सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली पढ़ लो, ठीक है, एकदम ही। और अगर अच्छा करना चाहते हो तो ट्राई कि एक चैप्टर आपका एक बार में कंप्लीट हो। अब आप ये बोलोगे कि हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, कैसे होगा? तो एक बार आप अपनी बुक्स खोल के एक चैप्टर क्लियर कोशिश करो कि एक बार बैठ गए तो आपको एक चैप्टर क्लोज करके ही उठना है, ठीक है। दीज आर द टिप्स फॉर इनिशियल डेज। वंस यू आर जस्ट यूज टू इट, अगर आप एक बार यूज टू हो गए कि अब तो पढ़ने की आदत हो गई है, ट्राई कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, बिकॉज एट एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज ओनली। चीटिंग का मैंने आपको फर्स्ट फ्यू मिनट्स में मैंने बता दिया कि चीटिंग का बेटा रास्ता ही नहीं है, तो रास्ता तो बंद हो गया। अब रास्ता सिर्फ एक है, पढ़ो और क्रैक करो, ठीक है, सारे रास्ते बंद। तो सीधी सीधी बात है, टाइम दो, पॉइंट्स बना बना के पढ़ो, एक चैप्टर एक बार में खत्म करो। करंट अफेयर्स के लिए एक टाइम फिक्स कर लो व्हेन यू आर इन अ रिलैक्स्ड मोड, पढ़ाई हो चुकी है, लंच हो चुका है, डिनर हो चुका है, फ्रेंड से थोड़ा बहुत जो बातचीत होती है वो भी हो चुकी है, यू आर रिलैक्स्ड, यू आर ट्राइंग कि अब कुछ मतलब नहीं है, तो एंगेज योर सेल्फ इन करंट अफेयर्स। ऐसा समझो कि आप इंजॉय कर रहे हो। करंट अफेयर्स पढ़ने से एक तो नॉलेज आएगी, अवेयरनेस आएगी, अलॉन्ग विद आपके एग्जामिनेशन की तैयारी भी हो जाएगी। ये तो हुआ अभी के 16 डेज का, ठीक है। 16 डेज आई होप यू कैन मैनेज। कैसे कैसे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, और कैसे आपको अपना डन। नेक्स्ट, अब वो लास्ट के 4 दिन क्या करना है? लास्ट के 4 दिन आपकी तैयारी पूरी होगी। सबसे पहले तो ट्राई टू सॉल्व एज मच एज एमसीक्यूज, एज मच एज मॉक्स एज यू कैन। हमारा आईसीएसआई भी मॉक प्रोवाइड करेगा एक फॉर 1 आवर मे बी, जो कि आपको कुछ दिन पहले आपके इस पर्टिकुलर रिमोट एग्जाम से पहले आपको दिया जाएगा, सो दैट यू कैन टेस्ट कि ये एग्जाम कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब ये सारा तो हो गया कि बेटा पढ़ाई कैसे करनी है ना। अब क्वेश्चन आता है कि जो लोग घबरा रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ घबराओगे ना, देखो हमारा एक माइंड है, इट गोज ऑन विद द डायरेक्शन जो आप उसे प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि मॉक्स प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले पढ़ते टाइम भी पैनिक नहीं करना कि मतलब हम पढ़ रहे हैं और घबरा रहे हैं, पढ़ने और घबरा रहे हैं। आज इस लेक्चर के क्लोजिंग पे अपने दिमाग से ये गायब कर दो कि नहीं हो सकता, इट कैन हैपन, और ये बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, पॉजिटिव रहना है, बीच में बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना कि मतलब वही हो ना कि अचानक से बीच में फ्लिप मत करना कि नहीं अब तो हम रह गए, ऐसे नहीं। इवन यू हैव लास्ट 3 डेज, तब भी आपको होप नहीं छोड़नी है, बिकॉज ये कुछ ऐसी होती है ना कि साइंस नहीं है आपको, और ना ही ऐसी बहुत मुश्किल चीज है कि आप कर ना सको, तो लास्ट तक होप नहीं छोड़नी है। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस इन माई फाउंडेशन एग्जाम। तब फाउंडेशन होता था, तो जस्ट लाइक यू, बट इन माई केस आई टुक अ कोचिंग एंड माई एग्जाम वॉज देयर, बट मैं कभी पढ़ी नहीं उस एग्जाम के लिए, सीरियसली बताऊंगी, पढ़ी नहीं, ठीक है। बट इन लास्ट आई थिंक लास्ट 10 डेज मुझे भी यही सिचुएशन थी कि मैं पैनिक कर रही थी कि मेरे बस की नहीं है, मैं हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। बट लास्ट 10 डेज में मैंने जो भी पढ़ा ना, मतलब मैंने नहीं पढ़ा, कंप्लीट नहीं पढ़ा, मैं मानती हूँ कि मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा, बट मैंने जो भी पढ़ा, पर मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए एग्जाम में। बट मैं पूरे टाइम पैनिक कर रही थी, तो कई टाइम मैंने वो पैनिक की वजह से पढ़ाई नहीं की, और मैंने मन में बना लिया कि पेपर मैं क्लियर नहीं कर सकती। इवन इन माई एग्जाम सेंटर ऑल्सो आई वॉज ट्राइंग कि कहीं से मुझे चीटिंग करने का रास्ता मिल जाए, सो दैट, क्योंकि एग्जाम तो मैंने तैयारी नहीं की, पर कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दिमाग में चीटिंग नहीं होगा ये सब निकाल दो, क्योंकि जब पढ़ोगे तो निकल जाओगे, ठीक है। अब कई बच्चों का ये था कि हाँ अब हमें एक बार नोटिफिकेशन भी एक्सप्लेन कर दी जाए, बिकॉज क्या है ना कि नोटिफिकेशन, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो सब बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ रही हैं कैसे होंगी। तो इसके लिए मैंने एक बार नोटिफिकेशन भी बोली है कि लेट्स सी। अच्छा, वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम चंचल। चंचल का क्वेश्चन है कि मैम विच बुक वी नीड टू क्रैक, वी नीड टू क्रैक द सीएस एग्जाम्स, ठीक है। देखो, आज तक अगर आपको अभी से गांठ बांध लो दैट इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन ऑफ सीएस, स्टिक टू योर मॉड्यूल, दैट्स इट। आपको सीएस डबल ईटी के लिए सही बताऊं, मार्केट में कोई इतनी खास किताबें हैं भी नहीं,
कि जो आपके मॉड्यूल को टक्कर दे सके, समझ रहे हो? तो टक्कर देने के लिए मॉड्यूल को मॉड्यूल है, आप सिर्फ और सिर्फ, और मैंने मॉड्यूल आपका बहुत प्यार से देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, इट्स नॉट दैट कि आप मॉड्यूल को ना पढ़ो, ठीक है? मॉक्स लो ICSI के और अपना मॉड्यूल पढ़ो, सिर्फ मॉड्यूल। मैं कोई और बुक सजेस्ट नहीं कर सकती इस पॉइंट पे, क्योंकि ऐसी कोई बुक इतनी अच्छी है ही नहीं। मॉड्यूल आपका एकदम बहुत ही सॉर्टेड बनाया गया है, जस्ट गो विद इट, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन आई एम हैप्पी टू सॉल्व, तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे से डिस्कस कर सकते हो। टिल द टाइम लेट्स डिस्कस ऑन दिस अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट में आपको ये तो बता ही दिया मैंने कि इट इज अ रिमोट प्रोक्टोर मोड एंड देयर विल बी अ प्रोक्टोर। प्रोक्टोर इज अ सुपरवाइजर हु इज गोइंग टू सुपरवाइज यू इन बिटवीन द एग्जाम, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से दिस इज ड्यू टू दिस वायरस एंड ऑल, वी आर मोर एंगेज इन द टेक्निकल थिंग। तो अब यह प्रॉब्लम ये है कि अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, वी डोंट हैव इंटरनेट फैसिलिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको सच में बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो प्लीज अरेंज कर लो, अभी टाइम है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा तो उन्होंने यही ऑप्शन आपको नवंबर के लिए दिया है, बट अगर चांस है कि आपको मिल सकता है एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो ट्राई कि मिल जाए। फोन से ये मेरे को लगता नहीं है होगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा भी है कि द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू अपीयर थ्रू फोन। तो हम लोग फोन पे डिपेंडेंट हैं, तो सबसे पहले ट्राई करो कि आपको एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, लैपटॉप और डेस्कटॉप। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि वाइवा हैज बीन रिमूव्ड। 50-50 नंबर के एग्जाम होंगे, ये आप सबको मुझे आई होप पता है। एग्जाम आपको मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ, देयर विल बी 4 एग्जाम, वाइवा हैज बीन रिमूव्ड एंड करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चंस होंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मोड में। एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इजी है, हो जाएगा। चलो अब मोडस ऑपरेंडी पढ़ते हैं कि एग्जाम होगा कैसे, बिकॉज आधे से ज्यादा बच्चों की क्वेरी यही है कि एग्जाम तो देना चाहते हैं बट एग्जाम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो ही थोड़ा मुश्किल ना पड़े, है ना? तो पढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहले ये रिमोट मोड में होगा, घर में आराम से बैठो तसल्ली से। अब अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अरेंज कर लो। क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक बार प्लीज चेक कर लेना, बिकॉज नॉर्मल लैपटॉप्स विदाउट, अगर आपका माइक्रोफोन नहीं चल रहा, आपका कैमरा नहीं चल रहा, तो यह नहीं चलेगा, बिकॉज आपको कैमरा से सुपरवाइज किया जाएगा। तो ब्राउजर सब में होता ही है, रैम आपको चेक करनी है, यू हैव टू चेक योर ग्राफिक्स मेमोरी, मल्टीमीडिया, ये सब होते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें होती हैं, माइक्रोफोन होता है, वेब कैम आपको होना चाहिए। अब आपके नॉर्मल अगर लैपटॉप का स्क्रीन का कैमरा है वो भी चल जाएगा, और वेब कैम है तो वेब कैम तो चाहिए ही। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका ये इतना हो। इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए ही, नॉर्मल कनेक्शन। उसके बाद सप्लाई तो होगी, तो आपको बस बेसिकली चेक करना है कि आपका माइक्रोफोन, वेब कैम काम कर रहे हो, और ये रैम, ये सारी सेटिंग्स आप एक बार अपने सिस्टम पे चेक कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ऐसा ना हो आपका एग्जाम शुरू हो जाए और आप बीच में आपका कैमरा ना चले, ठीक है? तो ये सब चीजें आप एटलीस्ट, मैं तो कह रही हूँ आज ही बंद करके अपना पहले चेक करो। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन पासवर्ड आईडी मिलेगा, विच यू नो कि आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, एंड देयर विल बी अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद ये आपको एग्जाम से पहले आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स भेजे जाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे आता है कि मैडम क्या हम, अब यहाँ पे उन शरारती बच्चों से मैं बात करना चाहूंगी जो सोच रहे थे कि हमारे तो भैया हैं, वो तो ऑलरेडी CS हैं, तो हम उन्हीं को बिठा देंगे, करा देंगे एग्जाम। तो ये उन बच्चों के लिए ये लिखा गया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दैट योर फोटो विल बी कैप्चर्ड, इसी के लिए उन्होंने कैमरा मांगा है, योर फोटो विल बी कैप्चर्ड एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो, जब फोटो कंडक्ट हो रही होगी तब भी आपकी फोटो देखी जाएगी, ठीक है? और अगर मिसमैच हुआ, अब ऐसा भी नहीं कर सकते, अब मैं बताती हूँ इन्होंने क्यों लिखा है। ऐसा ना हो कि शुरुआत में जब एग्जाम शुरू हुआ तो आप बैठ गए, उसके बाद एग्जाम देते टाइम किसी आपको और को बिठा दिया, तो आप ये भी नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल सी कि इनिशियली कौन बैठा था एंड ड्यूरिंग द एग्जाम कौन एग्जाम दे रहा है, दे विल मैच दिस ऑल्सो। अगर आप उनको लगेगा तो भाई उसी टाइम आपका एग्जाम कैंसिल करवा देंगे, ठीक है? उसके बाद ड्यूरिंग दिस एग्जाम प्रॉक्टर कैन डिमांड योर एडमिट कार्ड ऑल्सो, कि अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, अपना ID प्रूफ दिखाओ, विच विल दे यूजुअली डू, क्योंकि प्रॉक्टर एग्जाम अभी तक आपके CS में कहीं हुआ नहीं है, तो इट विल बी अ न्यू थिंग, तो आपको ये सारी चीजें तैयार रखनी है। अब उन फिर शरारती बच्चों से जो ये नए नए आइडियाज निकाल रहे थे,
कि हम क्या करेंगे, एक विंडो और खोल लेंगे, जिस विंडो पे एग्जाम है उस साइड वाली विंडो पे सर्च कर लेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का फटाफट क्वेश्चन। तो ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज दे कैन सी इट। अगर उन्होंने क्या ऊपर लिखा है कि इफ इन केस यू वायलेट एनी रूल, तो भाई आपका उसी टाइम आपके प्रॉक्टर को, आपके सुपरवाइजर को पता चल जाएगा एंड ही विल टेल यू, और अगर वो चाहे तो आपका एग्जाम भी उसी टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो भूल जाओ कि चीटिंग नाम की कोई चीज है एग्जामिनेशन के लिए। मतलब दिमाग में जो आते हैं ना थॉट्स, एक दिमाग का एक साइड होता है जो आपको एक ऐसा होता है ना कन्विंस करता है कि नो दिस इज राइट, चीटिंग कर ले, चीटिंग कर ले, यहाँ वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे कर सकते हैं कि आप अपना वेबकैम बंद करके बैठ जाओ, बहुत चलाकी चलाकी करने के लिए सब बच्चों के उन्होंने वो लिखे हैं, तो आप अपना वेबकैम भी ऑफ नहीं कर सकते, आप अपना कैमरा भी धुंधला नहीं कर सकते। योर फेस शुड बी विजिबल, फेस आपका मैच करना चाहिए प्रोफाइल से एज वेल एज फ्रॉम द एडमिट कार्ड। ठीक है, आप अपना माइक्रोफोन भी बंद नहीं कर सकते। इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान बेसिकली रखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन एक्टिविटी वो नोट कर सकते हैं। अब आप कुछ बच्चों का ये होगा दिस इज अ फोन इन माय हैंड, तो आप कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि मैम हम तो फोन पे देख लेंगे, अब आप स्क्रीन पे हो, मैं ऐसे ऐसे टाइप करूंगी, अभी मैं टाइप कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर नीचे भी देखोगे तो दे कैन सी कि आप एक अगर कुछ और कहीं पे ध्यान दे रहे हो, तो प्रॉक्टर आपको हमेशा देखता रहेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान से निकाल दो। सिर्फ एक ही तरीका है पास होने का, विच इज स्टडी, स्टडी एंड स्टडी, दैट्स इट। अब देयर विल बी अ लाइव प्रॉक्टर। प्रॉक्टर जो होगा he will going to supervise your exam at the time you are taking exam, तो वो आपसे बात भी you can contact with him, you can connect। माइक से बात कर सकते हो, कैमरा से बात, मतलब कैमरा से आप, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही ये भी बात हो सकती है। ठीक है, हाँ, उसके बाद टाइम टू टाइम आपका एग्जाम लेते हुए स्नैपशॉट्स भी लिए जाएंगे सो दैट दे कैन सी। ठीक है, टाइम जितना अलॉटेड होगा उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा, और इधर द प्रॉक्टर और इधर यू कैन फिनिश। अगर आपको लग रहा है कि आपने जल्दी दे दिया तो इट्स ऑल अबाउट यू। अब लास्ट में एग्जाम के बाद जो आपका सुपरवाइजर होगा ही कैन पास एनी ही कैन गिव एनी कमेंट अपॉन योर टेस्ट। अगर उसको लगा कि बीच में कोई वायलेशन था, उस टाइम तो आप चीटिंग कर गए, आप सोचोगे कि प्रॉक्टर ने मुझे 1 घंटे में कुछ नहीं बोला, दैट मीन मेरा एग्जाम हो गया। बट आफ्टर योर एग्जाम इफ यू हैव डन एनी चीटिंग और यू हैव वायलेटेड एनी रूल्स, आपका प्रॉक्टर वो कमेंट आपके एग्जाम पे देगा एंड योर एग्जाम कैन बी कैंसल्ड, योर एग्जाम रिजल्ट कैन बी कैंसल्ड। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, और बीच में कोई ब्रेक्स नहीं है ऑब्वियसली। अब आप एग्जाम छोड़ के चले जाओ फटाफट फोन से रिजल्ट कोई क्वेश्चन देखा हो तो ये भी चलेगा नहीं। अब सबसे उन बच्चों के लिए जो बहुत सिंसियरली एक क्वेश्चन मन में लेके बैठे हैं कि मैम एक बात बताओ, अगर इन केस आपका बीच में इंटरनेट अनस्टेबल हो जाए, जैसे बीच में मेरा भी इंटरनेट अनस्टेबल था, तो इस केस में क्या हो सकता है, हमारा इंटरनेट ही चला जाए, हमारी वीडियो उड़ जाए, हमारा ऑडियो उड़ जाए, टेस्ट ही गायब, स्विच ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, है ना। तो इन दैट केस जब आप फिर से लॉग इन करोगे तो आपने जहां लास्ट क्वेश्चन पे छोड़ा था यू विल गेट अ पॉइंट कि आपको वहां से मिलेगा करने को। ठीक है, चलो, और अगर आप नहीं दे पाते हो उस टाइम पे एग्जाम तो वो 2 दिन के अंदर हो जाएगा, मतलब उसकी कोई टेंशन इतनी है नहीं। बट ट्राई कि आपकी सारी चीजें उसी टाइम फैसिलिटी सारी प्रॉपर हो। लास्ट मैंने आपको मॉक टेस्ट का बताया ही था कि देयर विल बी अ मॉक टेस्ट जो कि ICSI आपको प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं उन बच्चों पे जिन बच्चों को मन में ये लग रहा है कि मैम ने इतना कन्विंस कर दिया ना बट अभी भी मन नहीं भरा, हमें एग्जाम देना ही नहीं है, मतलब वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो रहे और वो कह रहे हैं कि मैम हमें एग्जाम नहीं देना। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी कि पहले तो आप एग्जाम नवंबर में भी दे सकते हो, ऑल्दो आई डोंट वांट इट। मैं अपने किसी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो ऐसे करें अनलेस एंड अनटिल आपकी बहुत सीरियस सिचुएशन नहीं है, मतलब आपके पास सच में आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपका एग्जाम नवंबर में हो सकता है। और अगर आपने फीस दे रखी है तो आप उसको आगे करा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अनाउंसमेंट बहुत सिंपल है, 20 डेज हैं, एक भी घंटा एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। मैंने नाइन्थ क्या मैंने 8 अगस्त से ही आपको प्लान करके दिया है कि आज ये ऑफ करते ही गेट स्टार्टेड विद योर स्टडीज। ठीक है, तो इतना ज्यादा पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। साथ में ही वही लोग मैं बता रही थी जिनके लिए है, तो एग्जाम आपका
डेट आ गई है, इट इज इन नवंबर, ठीक है, नवंबर की भी डेट आ चुकी है, यू कैन चेक ऑन ICSI। और उनको अगर अपनी डिक्लेरेशन देनी है तो वो 14 अगस्त तक दे सकते हैं। कि अगर आप चाहते हो, आपने रजिस्टर इस एग्जाम के लिए किया हुआ था, बट इफ यू स्टिल वांट कि आप नवंबर में एग्जाम देना चाहते हो, तो दिस इज अ लिंक अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। इस लिंक पे जाके रजिस्टर कर दो, सेम फीस पे आप अपना एग्जाम नवंबर वाले एग्जाम अटेम्प्ट में दे सकते हो, बट आई डोंट वांट यू पीपल टू डू दैट, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लोज, ठीक है। अभी भी अगर किसी के पॉइंट में, मतलब किसी के मन में भी कोई भी डाउट है, तो दे कैन आस्क कि और भी कुछ आ रहा है, बिकॉज आई हैव ट्राइड कि अब सारी जो भी नोटिफिकेशन है, आई हैव ट्राइड कि मैं पूरा उसे एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से। कोई भी ऐसी चीज मेरे को नहीं लग रही है विच आई हैव लेफ्ट। एग्जाम का पैटर्न मैंने डिस्कस कर लिया है आपसे। आई हैव डिस्कस्ड हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज। प्लीज मेक अ टाइम टेबल, प्लीज स्टडी विद अ सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। 4 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 4 दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, 4 दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ लो। एक एक चैप्टर एक एक बार में खत्म कर लो, ठीक है। बिल्कुल पैनिक मत करो। आई एम 100% श्योर, आई एम 100% श्योर कि दैट यू विल क्लियर दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अगर ऐसा ना होना तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो कि मैम ऐसा नहीं हुआ। बट अगर आपने ये सारे टिप्स फॉलो किए तब, ठीक है। मॉक टेस्ट ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल हैं, जितने हो सकते हैं, मैं कह रही हूँ जितने, मतलब जितने। और अब क्वेश्चन आता है, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस करना भूल गई, कि वो बच्चे जो जिनको पढ़ने का स्टाइल सीखना है कि पढ़ें कैसे, बिकॉज रीडिंग करें, राइटिंग करें, क्या करें। बुक तो आपके सामने है, आपके सामने मॉड्यूल है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो ट्राई टू मेक MCQs। मान लो कि मैं आपको एक आपका एक चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट का मेन टॉपिक है। तो मैं जब उसे पढ़ाती हूँ तो आई ओनली से कि ट्राई कि आप उसे खुद पढ़ो, आप लेक्चर देख लोगे इनिशियली, अभी चाहते हो इनिशियली जितने लेक्चर देख सकते हो देख लो, फटाफट देखो, यही टाइम है, जितने लेक्चर देख पाओगे देख लोगे। उसके बाद जब आप खुद पढ़ते हो तो मॉड्यूल सामने रखो, टेक अ नोटबुक, जितने भी MCQs उसमें से निकलते जाते हैं निकालते जाओ। मतलब आप उससे को बस यही करना है कि अगर एक पेज आपके सामने है, देयर इज अ पेज, उसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आपको उस पेज में ना ऐसे, मतलब आपकी नजर होनी चाहिए कि एज मच एज MCQ पॉसिबल आपको उनमें से निकालने हैं। राइट इट डाउन, आपको मॉक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा मॉड्यूल अगर एक बार पढ़ गए ना तो मतलब मॉक्स भी फेल है, ठीक है। अपने MCQs खुद बनाते चलो, MCQs बनाते चलोगे, याद भी होता जाएगा, और आपकी तैयारी एज मतलब विद द पॉइंट ऑफ मॉक टेस्ट वो भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाई का तरीका सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा है मेरे लिए, एंड आई एम 100% श्योर कि आपके लिए भी होगा। अपनी मैंने मोटिवेशन स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी इसलिए डिस्कस की थी सो दैट यू कैन लर्न कि इवन अगर एंड सी अभी सिचुएशन डिफरेंट हो गई ना। एट दैट टाइम मेरे को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आया था, पर मेरे को कोई गाइड करने के लिए नहीं था, बट नाउ आई एम हियर फॉर गाइडेंस। अगर मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकती हूँ तो यू शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज स्टडी, एंड आई hope and I want every student who is watching this lecture to just pass and get a rank. And I'll just wish best of luck for all the students who are going to attempt this exam. And that's all for today. In case of any doubt, in case of any query, you can just contact us. We'll be happy to help all of you. एक क्वेरी है यहाँ पे, हाँ जी। दिस इज फ्रॉम चंचल, विच बुक वी नीड टू क्रैक, वी हाँ नीड टू जी। क्रैक, हाँ। हाँ हाँ, so this query has been taken up in between the lecture also, but still I'll cover this query again. Chanchal has asked about the book she need to crack the CS exam. So as I always suggest to all my students, I have also suggested me also, that the module that are provided by ICSI are best in the market. Don't go for any book right now. कोई नई बुक उठाने का फायदा नहीं है, जो बुक आपको मिली है ICSI से, इट इज बेटर, इट इज बेस्ट बुक अवेलेबल। अगर आपने उस मॉड्यूल को एकदम ढंग से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लिया तो
there is no one who can stop you for getting a rank in this exam. सिर्फ और सिर्फ CS modules देखिए, मैंने वो देखे हैं, they are more than enough. ठीक है, अगर आप वो पूरे पढ़ गए तो there is nothing left. I hope this doubt has been cleared. Right. So thank you for this session now. So, okay, thank you to all the students.